Hello guys, this is the 12th lecture of chemical kinetics. In the previous lectures, we have talked about the zero order reaction, first order reaction, nth order reaction, and find their half life. And then after that, we have done some numerical related to these zero first and nth order reactions. And after that, we done how to find the order of reaction with the method of half-life method, graphical method, rate law method. So in today's lecture, we will talk about the molecularity of reaction. Molecularity of reaction. So today's lecture is totally a theoretical lecture and very important lecture because some of the question may come from the molecularity and it's a single one line question. So topic is important but not very tough. So today is molecularity of reaction. Molecularity of reaction. Molecularity of reaction. And the definition is molecularity definition. The number of molecules oblique atoms of reactant that take part in an elementary bracket में single step chemical reaction. So what is the definition? Definition is the number of molecules and atoms of reactant that take part in an elementary reaction. So elementary, we have talked about the elementary reaction in lecture 3 when we talk about the Goldberg and Bagela. Goldberg, sorry, Berg, it's not W, it should be B. Goldberg and Bagela law of mass action. When we talk about this, we talk about the elementary reaction at the end of that lecture. So elementary reaction is a single step reaction. It means if you talk about the mechanism of that reaction, that is only a single step reaction. So that is the elementary reaction, and for the elementary reaction, the number of molecules or atom of a reactant is termed as the molecularity of the reaction. Okay, so molecularity is nothing but that a number of molecules or atom of a reactant that take part in a elementary chemical reaction. So let us consider if we have two molecules A and B. If we have two molecules, let us consider from different color. If we have two molecules, this is A and this is B. So if we talk about in terms of collision, and they have to collide in a certain position PQ. So this A molecule will collide and this B molecule will collide to A, but collision is such a way that the P position of molecule A will collide to Q position of molecule A. That is a certain angle. If they collide and release a certain amount of energy, then only a product form. So this collision, actually a molecule A and molecule B collide each other and in a certain angle and release a certain amount of energy. So तभी एक product form करेगा. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि ये जो कोलिजन होता है वो कंट्रोल कोलिजन नहीं होता है. कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होते हैं वो रैंडम कोलिजन होते हैं. तो वो रैंडम कोलिजन में भी आपको
इस पॉइंट को इस पॉइंट से कोलाइड करना है विद देन आपको उसी सर्टेन अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करनी है तो फॉर्म बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज वेरी लेस। और ये जो कोलिजन के द्वारा आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। सो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड इफेक्टिवली टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो इफेक्टिवली कोलाइड का मतलब क्या है इसमें? ये इफेक्टिवली कोलाइड का मतलब है ये कि उनको एक सर्टेन एंगल में कोलाइड करना है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना है, तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दिस इज द मीन ऑफ इफेक्टिवली कोलाइड। तो कोलिजन थ्योरी से ये आया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिवली कोलाइड करना प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो जो मॉलिकुलरिटी की एक दूसरी डेफिनेशन बनी इससे बनी, और जो कि आपके साथ एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वो ये है द number of molecules or molecules oblique atom of a reactant that must collide effectively oblique simultaneously to give product in an elementary chemical reaction. So what does this mean? It means कि ये जो मैंने अभी बोला कि कोलिजन थ्योरी में आपका इफेक्टिवली कोलाइड होना चाहिए, तो आपकी यहाँ से बन गई कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एटम है उनको इफेक्टिवली कोलाइड करना है, मींस इट अ सर्टेन एंगल एंड रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गिव अ प्रोडक्ट। इफेक्टिवली कोलाइड उसको बोलेंगे, टू गिव अ प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो व्हाट डज इट मीन साइमल्टेनियसली? इफेक्टिवली तो समझ में आ गया। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या? साइमल्टेनियसली मतलब ये है कि let us consider we have 3 atom या 3 molecule A, B और C, और इन तीनों को कोलिजन करना है। ठीक है, अब इन तीनों को कोलिजन करना है और इनका इफेक्टिवली कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिवली कोलिजन होगा कि ये पॉइंट A में, ये पॉइंट B में और ये पॉइंट C में मान लेते हैं, दिस पॉइंट इन C B। तो इन तीनों पॉइंट को मतलब ये यहाँ से कोलाइड करे, फिर इसके बाद ये यहाँ से कोलाइड करे, या ऐसे ही सिमिलरली हो ये यहाँ से कोलाइड करे, सॉरी यहाँ से, फिर ये यहाँ से। तो ऐसे कोलिजन होना है कि इन तीनों का एक सर्टेन एंगल बनेगा कि इसी पॉइंट पे कोलिजन हो। और फिर इन तीनों का कोलिजन ऐसा नहीं है कि पहले ए बी से कोलाइड करके फिर सी आ रहा है। ए बी सी का तीनों का कोलिजन, ऑल थ्री कोलिजन will be simultaneously मीन्स ये तीनों कोलिजन आपके एक साथ होने चाहिए, साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ये नहीं कि पहले ए ने कर दिया फिर बी में कर दिया फिर सी ने करा, नहीं नहीं नहीं, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, एक एंगल में होने चाहिए, और तीनों में के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कोलिजन इज वेरी 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 लेस। सो होता क्या है कि इस प्रोबेबिलिटी तो वेरी लेस है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन यही है, और एलिमेंट्री रिएक्शन भी होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलरिटी डेफिनेशन यही है कि आपका इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, और अगर कोलिजन नहीं भी है तो भाई अगर सिंगल मॉलिक्यूल ही है तो वहाँ कोलिजन की तो बात ही नहीं आएगी, तो वहाँ प्रोडक्ट तो वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी नहीं आएगी, वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी आएगी भाई। उसमें क्या होता है, जैसे रेडियो डिके होता है, रेडियो डिके में आपका सिंगल एक यूरेनियम है, वो डिके हो रहा है यूरेनियम एटम, तो उसमें भी आपका सिंगल स्टेप होता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो
ऐसा नहीं है कि सिंगल एटम में नहीं होगा, सिंगल एटम में भी होगा, बट अगर मल्टीपल है तो उसमें ये थ्योरी लगेगी, कोलिजन थ्योरी। इसीलिए इसकी दो दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन इसीलिए है कि पहली डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, तो वहां से निकल आएगी। और अगर कोलिजन वाली है तो यहाँ से निकलेगी। दो मैकेनिज्म है, तो इसीलिए जो अगर दो या तीन एटम की बात करें तो दो में तब भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, बट तीन और तीन से ज्यादा की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत लेस होती है, क्योंकि उनको एक सर्टेन एंगल में कोलाइड करना है, साथ में करना है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी है तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो मॉलिक्युलरिटी जो तीन होना बहुत बहुत मतलब इस रेयर केस की मॉलिक्युलरिटी आपकी तीन मिलेगी, और तीन से ज्यादा तो मिलती ही नहीं है। तो इन दोनों डेफिनेशन से हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या मिला हमें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ये मिला इन दोनों डेफिनेशन से, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो दोनों डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ अ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, the number of molecules atom of a reactant that must collide effectively simultaneously to give product in a elementary chemical reaction। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो मॉलिकुलरिटी होती है वो ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिकुलरिटी इज ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री reactions, or we can say, or molecularity is not defined for complex or multi-step reaction। तो हम देखते हैं फिर मॉलिकुलरिटी निकालते हैं सम एग्जांपल के थ्रू कि एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। अब लेते हैं, ठीक है, तो लेते हैं एलिमेंट्री ऑब्लिक सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो कोई भी एक आपकी रिएक्शन ले लेते हैं, कोई रिएक्शन है आपकी A प्लस के बी गिव्स सी, और ये दिया है, ये एलिमेंट्री है, बट आपको पता कैसे चला ये एलिमेंट्री है? पर ये दे तो दिया गया, लेकिन हाउ डू यू नो दिस इज एलिमेंट्री? देने से थोड़ी ना होता है। तो इसके लिए हमने निकाला रेट। रेट क्या आया? रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1। बट ये जो रेट आया ये ऐसे नहीं है कि हमने एलिमेंट्री बोल दिया, हमने ऐसे लिख दिया, ये आया एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड दिस, ये रेट है, तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड रेट है। तो इस एक्सपेरिमेंटली फाइंड रेट में जब ये आया तो पता चला कि आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसकी पावर 1 है, और कंसंट्रेशन बी है उसकी पावर 1 है, और इत्तेफाक से ये पता चला कि इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री भी 1 है। तो पता चला ओ ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड रेट है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड रेट की पावर आपकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ गई, तो पता चला कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ना कि ये एलिमेंट्री थी तो हमने ऐसे लिख दिया। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड है, इसलिए हमने बोला इसको एलिमेंट्री रिएक्शन है। और सिंस ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी होगी जितने भी रिएक्टेंट टेक पार्ट कर रहे हैं है ना एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, तो दो हैं, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जो कि ए की पावर है, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, दैट इज 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी दोनों उसमें सेम आई। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स उठा लेते हैं। ये एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट है NH4 NO2, जो कि आपका टूट रहा है N2+2 वाटर में, और इसमें लिखा हुआ है ये एलिमेंट्री है। सिंस अगर ये एलिमेंट्री लिखी हुई है तो रेट क्या होगा? रेट होगा के NH4 NO2 की पावर 1, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड है, बट अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो भी स्टोइकोमेट्री होगी वो उसकी पावर 1 होगा, उतनी ही पावर होगी।
तो उसका पावर 1 नहीं होगा, मतलब जितनी जो स्टोइकोमेट्री होगी वही पावर होगी उस रिएक्टेंट की। ठीक है, तो सिंस यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो गया 1। और सिंस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, तो मॉलिक्युलरिटी हो गई, मॉलिक्युलरिटी इज 1। तो इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ सकता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन गिव्स दिस एंड दिस, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे करके पूछ सकता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्युलरिटी है, एक मॉलिक्युलरिटी है तो इसका मतलब एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट है इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहा है तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अगर रेट लिखा जाएगा तो उस रिएक्टेंट की पावर 1 आएगी क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 1 है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ना कि आपको रिएक्टेंट रिएक्टेंट कुछ नहीं, सिर्फ आपको दे दिया कि मॉलिक्युलरिटी 1 है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये है, ठीक है। तो ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, अगर 2 moles ऑफ HI react or reacted with each other and then it form H2 and R2 and it is given it is a elementary reaction, elementary reaction। तो आपका रेट जो होगा वो होगा K HI का स्क्वायर, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड है बट एलिमेंट्री लिखा है, तो जो भी आपकी स्टोइकोमेट्री है वही लग दी जाएगी यहाँ पर। तो मॉलिक्युलरिटी आएगी आपकी, मॉलिक्युलरिटी इज 2 बिकॉज 2 molecule ऑफ HI आपके रिएक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपका हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं कोई थर्ड मॉलिक्युलरिटी का। तो 2 moles ऑफ NO रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म 2NO2। तो यहाँ पर एलिमेंट्री की जगह लिख दिया उसने सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप है तो रेट क्या होगा इसका, भाई रेट एलिमेंट्री हो गई तो एलिमेंट्री जितने भी प्रोडक्ट है उनका स्क्वायर, इसका पावर 1, तो के NO का स्क्वायर O2 की पावर 1। तो इसमें होता क्या है, जैसे अभी बताया था ना कि 3 मॉलिक्यूल है तो कोलिजन थ्योरी लगेगी। तो कोलिजन थ्योरी में आपका ये मान लीजिए कि ये NO है, ये भी NO मॉलिक्यूल है और ये O2 मॉलिक्यूल है। तो ये जो NO मॉलिक्यूल्स हैं, ये भाई NO है, ये NO है, ये O2 है, इन तीनों को साइमल्टेनियसली कोलाइड करना है और मान लीजिए इस पॉइंट पे इन दोनों को कोलाइड करना है। तो साइमल्टेनियसली और इस पॉइंट पे कोलाइड करना है और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ेंगे तभी आपका न्यूटन मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये कोलिजन है, ये कोलिजन बहुत ही रेयर कोलिजन है और बहुत प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कोलिजन वेरी लेस, क्योंकि भाई रैंडम मोशन होता है ना सबका मॉलिक्यूल का, रैंडम मोशन तो ये ऐसे मिलेगा ये ऐसे मिल जाएगा, भाई जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे ही मिले, भाई किसी एक एंगल, इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, इस पॉइंट का मतलब ये नहीं किसी पॉइंट पे मिलना है, इस पॉइंट का मतलब है किसी एंगल पे इनको एक कोलिजन करना है। ऐसा नहीं कि कोई एक एंगल होगा, एक सर्टेन एंगल पे कोलाइड करेंगे ईच अदर और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे तभी प्रोडक्ट फॉर्म होना है। तो वो कोलिजन बहुत, भाई 2 मॉलिक्यूल में तब भी सही है लेकिन 3 मॉलिक्यूल में वो कोलिजन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है कि उसको होना। तो ठीक है, होते हैं रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। तो इसमें क्या है, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी क्योंकि आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, तो 3 हो जाएगी, इसको बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर मॉलिक्यूलर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 3। हमने देखा कि जनरली जनरली अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी
बराबर होती है। तो यहाँ से एक पॉइंट बना, जनरली, इस जनरली का मतलब हो गया अप्रोक्स 99% टाइम, जनरली 99% टाइम्स molecularity molecularity इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम जब मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो हम एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और रिएक्शन लिख रहे हैं और एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कोई ईस्टर है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, CH3CO, C2H5 प्लस वाटर। ठीक है, तो इसकी हो रही है हाइड्रोलिसिस, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो रही है इसकी, तो बन रहा है एसिटिक एसिड CH3COH प्लस C2H5OH, C2H5OH। अब बोल दिया गया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि ये एक्सेस पे है, दिस इज इन एक्सेस। तो एक्सेस पे है और एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट क्या होगा, तो रेट होगा कि CH3COO, C2H5 एंड वाटर। तो लेट अस कंसीडर इसको ऐसे माने, जो हम लोगों ने शायद स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, कि अगर एक मॉलिक्यूल इसका जाएगा तो एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसके 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका एक चला गया तो बचा 999। तो ये 999 जो चले गए जो 999 बच गए, तब भी 1000 में से एक गया, 999 बच गए, मतलब बहुत बच गए। इतने बच गए हैं जो कंसंट्रेशन जो आप इसकी बात करें, मतलब दिस इज जो वाटर है ना, यहाँ पर वाटर इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट ओनली। तो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वाटर और एसिटिक एसिड है, उसी सॉल्यूशन में वाटर जो है सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में ही आपका ईस्टर जो है वो एसिटिक एसिड और एथेनॉल में चेंज हो गया। तो वाटर आपका सॉल्वेंट में काम कर रहा है, मतलब बहुत है कंसंट्रेशन। तो आप इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही होगी, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं कांस्टेंट। और ये तो कांस्टेंट है ही है ही, ये तो कांस्टेंट है ही। तो हम इसको बोल देते हैं कि सिंस वाटर कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये एक आपका तरीके हो गया कि के प्राइम नया कांस्टेंट, के प्राइम CH3CO, C2H5। तो इसमें अगर हम ऑर्डर निकाले तो ऑर्डर क्या आया आपका 1। सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करें ना, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट चेंज होगा, इसके कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज ही नहीं होना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया 1। बट मोलिकुलरिटी की बात करें हम उधर, मोलिकुलरिटी क्या बोलती है, मोलिकुलरिटी बोलती है इन अ रिएक्शन द रिएक्टेंट्स दैट टेक्स पार्ट। तो रिएक्शन में कितने रिएक्शन टेक पार्ट कर रहे हैं, तो पार्ट कितने कर रहे हैं, ईस्टर भी कर रहा है, वाटर भी कर रहा है। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल उसको ना दिया जाता तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल कैसे बनता, नहीं बनता। तो वाटर का मॉलिक्यूल पार्ट तो किया, इसने भी पार्ट किया, बस वो वाटर बहुत ज्यादा था तो कंसंट्रेशन नहीं आई, तो वेट आपको ये आया। तो मॉलिक्युलरिटी तो यहाँ पर 2 हो गई, बट ऑर्डर 1 है, तो इसमें मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आता है, इसको नाम पड़ा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझे। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा था, सिंस सॉल्वेंट बहुत ज्यादा था, तो सॉल्वेंट के बहुत ज्यादा होने के कारण आपके पास वाटर कंसंट्रेशन जो चेंज भी हुई, जो एक्चुअली में चेंज नहीं, बट आप इन्फिनिटी में एक माइनस कर देंगे तो इन्फिनिटी रहेगा ना, तो कंसंट्रेशन तो चेंज हुई नहीं, तो वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी। सिंस वो कांस्टेंट थी, इस कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया के प्राइम। और सिंस मैं जो ईस्टर की कंसंट्रेशन है उस पर रेट आपका डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर 1 हो गया, मॉलिक्युलरिटी 2, 2 मॉलिक्यूल आगे पार्ट कर रहा था ईस्टर एंड वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो रही है और इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो सब लोग क्या करते हैं, मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 ही होगा, लेकिन उसने ये नहीं दिया कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर थी। तो हाइड्रोलिसिस जब आपको एग्जाम्पल पता होगा तो आप ऐसा ही गलती नहीं करेंगे। जैसे ले लेते हैं, जैसे एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, C12H22O11 रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोलिसिस यहाँ पर भी हुई, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन हुआ, तो इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और दिस इज फ्रक्टोज। तो ये होता है लीवर रोटेटरी और ये होता है डेक्स, सॉरी ये भी लीवर रोटेटरी होता है ग्लूकोज भी, और जो ये फ्रक्टोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि आपकी जो ऑप्टिकल लाइट लाइट होती है, लाइट को लीवर रोटेटरी लेफ्ट में कुछ करता है, मतलब लीवर रोटेटरी का कुछ होता है कि कुछ रोटेट करता है लाइट को, तो ये लीवर रोटेटरी होता है, ग्लूकोज भी लीवर रोटेटरी और फ्रक्टोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और इन दोनों में जो इसकी मात्रा होती है वो फ्रक्टोज की ज़्यादा होती है, तो जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। तो जो लीवर रोटी से डेक्स्ट्रो रोटी हो गया, इसलिए इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। और ये होती है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, ऐसा लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्री है तो रेट आपका आएगा रिएक्टेंट के दोनों रिएक्टेंट के ऊपर, O11 एंड वाटर, ये रेट होगा। सिंस वाटर जो है इसमें भी एक्ट एज अ सॉल्वेंट है, एक्ट एज सॉल्वेंट, तो वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट है तो रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा K प्राइम C12H22O11 पावर 1, तो ऑर्डर हो गया आपका 1, बट मॉलिकुलरिटी इज 2, तो ये भी हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी सेम ना हो, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो ऑर्डर और उसके आगे स्यूडो लगा देंगे तो वो उसका नाम बन जाएगा उस रिएक्शन का। तो जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7, उसमें हम लोग सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि 2A reacts with B forms C, is a single step reaction, सिंगल स्टेप, और इसमें दिया हुआ है कि B इज एन एक्सेस, ये आपको ऐसा दे दिया है B इज एन एक्सेस, तो रेट जो होगा, रेट इज इक्वल टू K A² इंटू बी होना चाहिए, बट बी इज एन एक्सेस तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट रहेगी, तो रेट इज इक्वल टू K प्राइम A²। सो आपका जो ऑर्डर हो जाएगी वो हो जाएगी 2, बट मॉलिक्युलरिटी इज 3, मॉलिक्युलरिटी इज 3, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल में बनते हैं, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल और क्या ही कराएंगे, तो आएगा तो आंसर वही। एक ये कर लेते हैं कि अब कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो कॉम्प्लेक्स कॉमा और ब्रैकेट में मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो इसकी एग्जांपल हम उठा लेते हैं कि जो NO2 और CO की रिएक्शन हुई और NO प्लस CO2 बन गया, और ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पता कैसे चला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटली जो रेट डिटरमाइन किया गया, तो फिर R इज इक्वल टू KNO2 का स्क्वायर, तो ये एक्सपेरिमेंटली आया, तो बच्चा K इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर, तो ये तो CO की कंसंट्रेशन में चेंज आपका डिपेंड नहीं कर रहा है, और NO2 का स्क्वायर है, ये स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसकी हो गई 1, सॉरी 2, बट मॉलिक्युलरिटी क्या होगी इसकी,
2। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी इसके, बताइए। मॉलिक्युलरिटी है इसकी 2। रॉन्ग, 2 नहीं है, नॉट डिफाइंड। मॉलिक्युलरिटी इसकी नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है भाई। आर इसका क्या है, NO2 स्क्वायर। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, उन सिंगल स्टेप्स का तो मॉलिक्युलरिटी होगी, बट ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं होगी। कि मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑलवेज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये हमेशा याद रखिए। ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, वो आपका टूटता है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, CH4 एंड CO। तो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, रेट पता है इसका। रेट हो गया इसका K CH3CHO की पावर 3/2। पता था रेट, नहीं पता था ना, एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड हुआ ये। कॉम्प्लेक्स है तो रेट नहीं पता है ना, कि एलिमेंट्री रिएक्शन का भी रेट नहीं पता। एलिमेंट्री डिफाइंड ही होती कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा रेट आता है तो भाई एलिमेंट्री उसको हम बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटली, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड रेट ये था 3/2, 1 तो है नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो उसकी पता चल गई भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 3/2 है। बट व्हाट अबाउट द मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट अ elementary reaction, not defined because it is not a elementary reaction। ठीक है, तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होती है, ये हमने पहले लिखा हुआ था। और हमने जितने भी एलिमेंट्री एग्जाम्पल भी किए, एलिमेंट्री एग्जाम्पल देखे होंगे आपने कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो 3 तो होती है, या 3 से ज्यादा होती है मॉलिक्युलरिटी, क्या हो सकती है आप सोचिए। तो 3 में भी आपके 3 एटम हैं या 3 मॉलिक्यूल हैं, उनको एक सर्टेन एंगल में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी साइमल्टेनियसली कोलाइड करना है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस 3 में भी। कि 4 में हो सकता है ऐसा, 4 में तो होने ही नहीं है, चांस ही नहीं है। ठीक है,